लेकिन आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना होगा, जो मैं फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं. कैसे आप पास नहीं होंगे मैं देखता हूं. आई विल सी हाउ यू विल नॉट पास. ओके, सो द फर्स्ट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100. फॉर बोथ द ईयर्स it is 21,900. Last year 2014. Acha, 1 second, whether they are asking for both the years or not. For both years written, I have to calculate. If they are asking only 1 year, I will calculate that only. So 4600 by 21,900, 4500 by 23,200. Inventory period calculate करने के लिए inventory is 2100, 1600. Cost of sales is this. So 18,700 in 365 days, 2,100 in how many days? 17,300 in 365 days, 1,600 in how many days? मतलब 2,100 by 18,700 into 365, 1,600 divided by 17,300 into 365. Then they have given gearing ratio. Gearing ratio, long-term debt, short-term debt together, debt divided by equity or debt by debt plus equity. 13,000 by 10,000 or 13,000 by 23,000. Both are correct. 11,000 by 9,500 or 11,000 by 11,000 plus 9,500. Interest coverage ratio, profit before tax plus interest. You have 4 plus 2, 600, 740. 740 you have for paying 290 interest. So interest coverage ratio 740 by 290. Here it is 1,1100 by 250. So interest coverage ratio. सारे रेशियो का मतलब क्या है? We are saying the company's revenue has gone up from 21,900 to 23,200. लेकिन cost of sale has gone up from 17,300 to 18,700. So even though revenue बढ़ा है, sales is more. In Saraf Academy, more students are joining the classes. But जब खर्चा लेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट पिछले साल से कम है. काहे को? इसका मतलब इंक्रीज इन कॉस्ट इज एट ए ग्रेटर रेट देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू. 21,900 टू 23,200 से 8%. डोंट कैलकुलेट, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली कि रेवेन्यू इज गोइंग अप बाय 8%, बट द कॉस्ट ऑफ सेल इज गोइंग अप बाय ग्रेटर देन 8%. व्हाई द कॉस्ट ऑफ सेल इज गोइंग इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर रेट देन रेवेन्यू? व्हाट कैन बी द रीजंस? आप जनरली नहीं बोलेंगे. आप हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सिनेरियो that this is a tire company and all that. What is the reason that the cost of sales may be greater than the money increment in the cost of sale is higher as compared to revenue? What can be the reasons? Here Ayush said everybody, उन लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद केवल फाइनेंस कॉस्ट दिया है. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर केवल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब नहीं है, उसके अंदर एडमिन, सेलिंग सब घुसा हुआ है. कॉस्ट ऑफ सेल इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर दैट दे आर डिडक्टिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड दे आर राइटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नहीं, आई एम रॉन्ग, बिकॉज इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 4,500 minus 290, it should be balance. So cost of sale is cost of sale, that does not include admin, selling. सो आयुष का बोलना है कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल गॉन अप. आयुष, हम लोग यहां पर जब ये रीडिंग किए पूरा सिनेरियो, एनीवेयर इन एनी पैराग्राफ इट वाज आस्क्ड, इट वाज सेड कि रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ गड़बड़ी है, ऐसा कुछ कहीं बोला था क्या? जो 6-7 पैराग्राफ्स आर गिवन, इज एनी प्लेस दे आर सेइंग दैट द रॉ मटेरियल प्राइसेस हैज गॉन अप? This is what? This is what? This is what? The report to management issued by B and Company following last year audit highlighted significant deficiencies relating to Hurlene Company's purchase cycle. Purchase cycle में deficiency है. ये purchase cycle क्या होता है? What is purchase cycle? Anybody knows what is a purchase cycle?
ओके, सो जनरल रीजन नहीं चाहिए स्पेसिफिक रीजंस चाहिए जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं. परचेज साइकिल मीन्स analyzing that in the inventory the material is not there, so we need to order for the material. When the order, that is a document is prepared by the production department for that material, which is called material requisition. That material is analyzed by the another manager ki actually it is required, he will approve that the purchase should be done for this material authorization. Then that material purchase order will be prepared. That order will be placed. Before placing the order, we need to see that who are the suppliers for this, whether there is approved suppliers list or not. Otherwise, quotations will be asked. Then we will be placing the order. Once we place the order, then we will be receiving the material in the material receiving department with the documents that receiving invoice and all that need to be checked by the receiving department. It is of the proper quality and all that quantity. Then it will be received. Then the documents will be given to the accounts department, that whether the invoice, whether the goods received note, whether the price, whether all are correct. Then somebody will authorize the payment should be made to the supplier. Then the payment will be done by some another person. उसको दिया जाएगा. इसी को तो परचेज साइकिल बोलते हैं ना. General. I am saying not for this company, I am saying in general. They are saying that there is some loopholes in the purchase cycle. Where the loopholes are there? Maybe the materials are ordered even though they are not required, just for stocking purpose. Just that maybe there is a connection with a supplier of somebody. Maybe the materials which we are receiving are not of the proper quality. For that reason the problems in the defects arises. Maybe the material are not kept properly in the stores, so obsolescence and all that is arising. Maybe the suppliers are not charging for the material the proper price. They are deviating the prices. Maybe the person who is authorizing that thing, maybe he is engaged with them. कुछ तो होगा. थोड़ा सा सियोरिटी के लिए क्या हो सकता है? थोड़ा सा सियोरिटी के लिए the inventory period, it is 1600 to 2100. And the cost of sale is 17,300 to 18,700. Can anybody calculate 1600 by 17,300, the whole thing into 365? 1600 by 17,300, the whole thing into 365. 1600 by 17,300, the whole thing into 365. Last year inventory period 34 days. Now current year 2100 by 18,700, the whole thing into 365. 2100 by 18,700, the whole thing into 365. 2100 by 18,700, the whole thing into 365. You can say 34 to 41 is not a big deal, but the inventory days has gone up. The inventory days are gone up. Maybe they are giving a scenario that we are keeping more inventory, we are ordering the material which are already there. That is just increasing our inventory balances, increasing our carrying cost, but maybe that is not required. And why we are doing that? Because there may be a connection with the supplier or something. इसको लिखना कैसे वो बात की बात है. How you will write that, that's secondary. But थोड़ा सा रेशियो से कुछ तो फीलिंग आएगा. Otherwise, why we have calculated the ratios? In Roman 1.a, when you are calculating ratios, you need to use those ratios in writing your answer. तो आपको देखना होगा ना. यानी कि अगर अपने क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करना चाहते हैं, यहां से first point we have done the ratio calculation. Second point, which is the major part of this question, 16 marks, the audit risk and the what the auditor responses against the second question is what? Response to supervisor na? No, that is third question. ठीक है? So second question is audit risk and evidences to the risk. आपको यहां से देखकर कोई audit risk नजर आता है क्या? If yes, then what is the audit risk? Not business risk. What is the audit risk? What is the audit risk? Can I say revenue may be overstated? Because earlier they were thinking that out of the total wholesale sale, 10% may be returning items.
So maybe they were recording 90% as a sales revenue. But now they are changing their policy. They are going to consider 95% sale माना जाएगा, 5% the return chances are there. So the chances are there that the sales are not recorded properly. Because we are changing our policy from 10 to 5. And because of that, even though the sale are recorded, but the profit margin is not that high. वो उतना बड़ा नहीं है. इसको मैनेज करने के लिए, टू मैनेज दिस ऑडिट रिस्क, व्हाट स्टेप्स द ऑडिटर विल टेक, जो सुपरवाइजर है वो क्या करेगा, ये ऑडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए उसको करना क्या चाहिए, उसको ऑडिट प्लानिंग करना है कि भाई हम ये करेंगे. व्हाट ही विल बी डूइंग टू मैनेज दिस ऑडिट रिस्क, बिकॉज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी मे नॉट बी प्रॉपरली recorded. Why? Because they have changed from 5% to 10%, 10% to 5%. Because of that, maybe the revenue are not properly recorded. So उसके लिए उसको क्या करना होगा? Because planning means what you will be doing. Actually, you need to understand, Abdullah, we are not selling only at the end of the year. We are selling goods entire year. और अगर हम लोग 60 days का पॉलिसी रख के रखे हैं तो अल्टीमेटली तो लास्ट 2 महीना का ही स्टोरी बचा ना. इफ द ईयर एंडिंग इज सितंबर, देन इट इज ऑन सितंबर एंडिंग, वी आर लेफ्ट विथ मेनली अगस्त एंड सितंबर. उसके पहले का तो ठीक ही है, उसके पहले का टेंशन नहीं है मेरे ख्याल से. बिकॉज अगर वो 5 हो 10 हो, देन ऑल्सो इट इज नोन वेदर इट इज रिटर्न और नॉट. झमेला केवल अगस्त और सितंबर का है. Can we say that we will be doing cut-off procedures in more detail? Cut-off procedure में हम लोग अगस्त और सितंबर में कुछ सैंपल चेकिंग करेंगे, देखेंगे कि to whom the goods have been given, what is the nature of that customers, how much goods he returned in the past. अभी उसको देखेंगे in place of going into general way. And if the chances of return is very high, and if it is that is recorded as a revenue, we cannot record as a revenue. मतलब maybe Abdullah you were saying IFRS 5 will not allow, but I want auditing answer. I don't want accounting answer. Audit का check करना है, समझिए. Is everybody getting with the first paragraph, first audit risk, and what we will be doing to manage that audit risk? ऐसे करके हर एक पैराग्राफ से आपको कुछ ना कुछ रिस्क मिलेगा. आप एक एक पैराग्राफ से वो रिस्क लिखते जाइए, उसके बदले आपको करना क्या लिखते जाइए. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 तो हो गया, कोई 1 से 2 निकाल लीजिएगा. नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. इज देयर एनी ऑडिट रिस्क हियर? इज देयर एनी ऑडिट रिस्क हियर? इज देयर एनी ऑडिट रिस्क हियर इन द लास्ट पैराग्राफ? क्या है ऑडिट रिस्क? What is the audit risk involved here? What is the audit risk involved here? You can unmute yourself. What is the risk in restructuring? Restructuring में risk क्या है? What risk you are talking? एक सेकेंड, ये लोग क्या बोल रहे हैं? द फाइनेंस डायरेक्टर हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट कंपनी इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट फाइनेंस आफ्टर द ईयर एंड. मतलब अभी उन्होंने कोई रीस्ट्रक्चरिंग किया नहीं है, समझ लो. कैसे हटाएंगे वो लोग लोन अमाउंट? अगर वो लोग बैलेंस शीट से हटा देंगे जो पहले से चल रहा हो, कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? अगर मेरा आईसीआईसीआई बैंक से लोन चल रहा है, बैलेंस शीट में है, लास्ट ईयर था, इस साल में उसको कैसे उड़ाऊंगा? हाँ, क्या? व्हाट इज समथिंग? 20, वही तो बात है. तो आप डायरेक्शन गलत पकड़ रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं हमने रीस्ट्रक्चरिंग कर लिया.
हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे अभी, तो अभी तो हम लोन को उड़ा नहीं सकते भाई। अभी हमारे पास रिस्क क्या है कि जब फाइनेंस डायरेक्टर ये सब बोल रहे हैं कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, इनको पे कर देंगे, डिविडेंड नहीं देंगे, ये सब बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी डोंट हैव फंड्स फॉर रीपेमेंट, देयर आर सम डेट गोइंग टू बिकम ड्यू नेक्स्ट ईयर, और उनको ड्यू के लिए पेमेंट करने के लिए भी डोंट हैव फंड्स। उससे क्या रिस्क है? उससे द क्वेश्चन अबाउट द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी इज अराइजिंग, कि अगर आपका कोई लाइबिलिटी है, आप उसको समय पे नहीं करोगे तो क्या होगा? द लाइबिलिटी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। मे बी अगर कोई एसेट्स वगैरह सिक्योर्ड करके रखे हैं, दे विल फोर्स द कंपनी टू सेल दोज एसेट्स। मतलब क्वेश्चन यह नहीं है कि हमने झूठ का लोन दिखा दिया, क्वेश्चन ये है कि डेट का बर्डन हाई है, और डेट का बर्डन हाई है, यहां से अगर देखिए तो डेट इज ग्रेटर देन इक्विटी। अभी लास्ट ईयर से करंट ईयर और डेट बढ़ गया। जनरली अगर 50% से टोटल कैपिटल में डेट है, विच इज रिस्की। आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर एवरी इंडस्ट्री इट इज द केस, बट आपके पास इक्विटी 10,000 है और डेट 13,000 है, 13,000, तो आपका डेट तो 130% ऑफ इक्विटी है ना। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ पेमेंट करना है, जिसके लिए भी डोंट हैव फंड्स। द ऑडिटर नीड टू चेक कि भाई कंपनी के पास एडिक्वेट रिसोर्सेस होंगे क्या फॉर दोज पेमेंट्स विच आर गोइंग टू बिकम ड्यू। दे विल बी सर्चिंग द डेट डॉक्यूमेंट्स। अगर उन्होंने पास्ट ईयर में चेक किया था तो देखेंगे ऑडिट फाइल से कि लोन का रीपेमेंट का डेट कब है, उसको पेमेंट करने के लिए व्हाट इज द प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपनी। बिकॉज केवल डिविडेंड नहीं पे करने से काम बन जाएगा कि नहीं, ये भी देखना होगा। तो यहां क्वेश्चन ये नहीं है कि डेट गलत दिखा दिए, यहां क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये आ रहा है कि डेट को रीपेमेंट करना जरूरी है, हो सकता है पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो बिजनेस रिस्क है। ऑडिटर को क्या रिस्क है? When the auditor audit the accounts of the company, they are auditing the accounts based on going concern principle. And if we find that there are flaws in the going concern principle, then auditor को audit अलग तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से यहां going concern का रिस्क अराइज हो सकता है। आप going concern लिखो मत लिखो वो बात नहीं है, लेकिन आप जो स्टार्ट कर रहे हो ना कि डेट उन्होंने हटा दिया है, वैसा होना मुश्किल है। अगर आप बोलोगे तो आपको लॉजिक देना होगा काहे को डेट हट गया, कैसे हट गया। बिकॉज डेट तो पेमेंट तो अभी हुआ नहीं है, आप कैसे उड़ा सकते हो? हाउ द बैलेंस शीट विल टैली? कैश तो आपके पास है नहीं, तो आप डेट को उड़ाओगे कैसे? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन आने वाले समय में डेट हम लोग को रीपे करना है, रीपे करने के लिए फंड्स अरेंजमेंट करना है। डिविडेंड पे नहीं कर रहे, डिविडेंड पे नहीं करने से क्या पैसे इतने होंगे सो दैट वी कैन रीस्ट्रक्चर, सो दैट वी कैन रीपे, सो दैट वी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेट, सो दैट वी कैन बिकम कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, वो बताना है। जो परचेजिंग साइकिल है वहां रिस्क, जैसे आयुष वाज सेइंग रॉ मटेरियल परचेज प्राइस, लेकिन परचेजिंग साइकिल से रिलेटेड बहुत सारा फ्लॉज इन्होंने ऊपर ऑलरेडी बोला है। यहां पर इन्होंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रिस्क रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ पेटेंट। लेकिन सर वहां पे वो रीपेमेंट पीरियड नहीं आ रहा था, वो इंटेंशनली मतलब दे इंटेंट्स टू रिड्यूस द बोरोइंग कॉस्ट। हाँ, तो वो ये बोल रहे थे सर जब बंदा आप कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा तो है नहीं, गोइंग कंसर्न का तो तब आएगा ना इशू सर, जब क्या बोलता है कंपनी में मतलब है कि रीपेमेंट डेडलाइन हो गई, वो हमें पे करना है, मतलब कंपल्सन हो, कंपल्सन नहीं है सर यहाँ तो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। नहीं तो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किस लिए? इसीलिए ना कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बिजनेस में इंटरेस्ट का बर्डन उतना ना हो हमारे ऊपर। बिकॉज इंटरेस्ट बर्डन ऐसे तो नहीं दिख रहा कि हाई है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग EBIT फिगर, बट फिर भी आज 450 प्लस 290 आपका 700 800 है, उसमें से 290 आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो जो फिगर्स है ऐसा कोई खराब नहीं दिख रहे, बिकॉज इट इज 3 टाइम्स एंड 3 प्लस इज गुड। लास्ट ईयर थोड़ा और बेटर था, वो 1100 by 250, दिस ईयर स्लाइटली लोअर, बट फिर भी इस ईयर लोअर होने का कारण सीधा दिख रहा है कि कंपनी हैज बोरोड। सर मैं बोल रहा था कि अगर मैं खुद अपने आप से चाह रहा हूं कि मैं अपना डेट रिड्यूस कर दूं, हाँ, जब भी तो चाहूंगा ना जब मेरे पास पैसा होगा, हाँ, मतलब गोइंग कंसर्न का तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं आएगा शायद। नहीं तो फिर आप डिविडेंड क्यों नहीं पे कर रहे? सर डिविडेंड इसलिए नहीं पे कर रहे क्योंकि सर
अगर या तो डिविडेंड पे करूंगा या फिर लोन पे करूंगा सर। तो इसका मतलब यही है कि आप डिविडेंड नॉर्मली कोई, या बोलिए बोलिए। सर सर ये यूजुअल नहीं हो सकता है, मतलब डेट पेमेंट, ठीक है, तो जो पेमेंट जो मेरे पास कैश है वो मैं डिविडेंड ना पे करके मैं डेट कम कर रहा हूँ। तो फिर ऑडिट रिस्क क्या है? ये तो बिजनेस का रिस्क हम लोग कम कर रहे हैं। ऑडिटर को तो इससे कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए हम लोग डेट का बर्डन कम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग और बेटर होना चाहते हैं कि डेट इक्विटी गियरिंग रेशियो हम लोग का कम रहे, इंटरेस्ट बर्डन कम रहे, तो ये तो बिजनेस को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इससे ऑडिटर को कोई मतलब नहीं है। ऑडिटर को तो ये मतलब है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मिस स्टेटमेंट ना हो। सर बस यही कंफ्यूजन आ रहा था कि डिस्क्लोजर वो क्या गोइंग कंसर्न का होगा नहीं जब मैं खुद से जा रहा हूँ पे करना, तो नहीं, तो अगर आप बोलेंगे कि डेट को वो लोग गलत दिखा रहे हैं तो उसके लिए कोई रीजन तो देना होगा ना आपको। वो भी सपोर्टिंग। मान लीजिए आप बोल दिए कि डेट को वो लोग गलत दिखाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा स्टोरी बनाइए जिसके अंदर आपको ये चेक करना है कि डेट को गलत नहीं दिखा पाए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेट डॉक्यूमेंट्स है उनको आप लास्ट ईयर भी चेक किए होंगे, आप उनको फिर से निकाल कर देखेंगे कि उनका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। हो सकता है कि डेट को हटाने के लिए कोई एसेट्स हम लोग उनको दे रहे हैं। सो वेदर द डीलिंग विद द डेट होल्डर, हाउ वी आर गोइंग टू रीस्ट्रक्चर, दैट नीड टू बी चेक्ड। कुछ ऐसा बोलना होएगा जिससे कि आप उस चीज को चेक करेंगे, बिकॉज व्हेन द रिस्क इज देयर, then how you will minimize the risk means what you will be doing to minimize the risk. नहीं तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा? नहीं लग रहा है। तो मेरे को यहां फीलिंग आया कि अभी तो हम लोग डेट रीपे किए नहीं है, तो हम लोग डेट को रीपे करना चाह रहे हैं, मगर हम मतलब मे बी वी हैव अ बर्डन दैट वी नीड टू रीपे डेट। उसका जो टर्म है, टेन्योर है, वो खत्म हो रहा है, और डेट हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग वो डेट पे कर पाएंगे कि नहीं, वेदर द रिसोर्सेस आर देयर और नॉट। हम लोग डेट डॉक्यूमेंट चेक करके, तो मेरे को लगा एक लय बन रहा है। मे बी गोइंग कंसर्न लिखे नहीं लिखे, वर्ड गोइंग कंसर्न यूज करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मेरे को यहां पर ऑडिट रिस्क दिख रहा है कि वेदर द कंपनी विल बी एबल टू फुलफिल देयर कमिटमेंट और नॉट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रेड्यूसिंग द डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड वो लोग नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि फंड्स अवेलेबिलिटी का इश्यूज है, बिकॉज ये नीचे से नहीं पता चल रहा है, बिकॉज फंड्स फिगर्स आर नॉट गिवन हियर कि कैश हम लोगों के पास कितना है, कितना रीपे करना है। तो यो चीज ऑडिटर को चेक करना है, सो दैट वो मिनिमाइज कर सके रिस्क कि वेदर द कंपनी विल बी सेल्फ रिलायंट, विल बी पॉसिबल टू पे द डेट और नॉट, बिकॉज ये ऑडिटर को देखना जरूरी होता है। पैसा कंपनी को अरेंज करना है, लेकिन मेरा काम है चेक करना। सर वो कैश फ्लो मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर लग रहा है। कैश फ्लो में मैनिपुलेट मतलब माने पैसा नहीं है फिर भी झूठ का दिखा सकते हैं, कैश बैंक बैलेंस, तो आपको उसको चेक करना है। बैंक स्टेटमेंट, कैश बैलेंस, फिजिकल काउंटिंग, आपको अपने स्टाफ लोग को इंस्ट्रक्शंस देना है कि आप ये सब करोगे, नहीं क्या? बिकॉज हम लोग को लिखना इस तरह से आंसर है कि रिस्क ये है, और ये रिस्क से बचने के लिए ऑडिटर करेगा क्या, क्या चेकिंग करेगा वो, तब हम लोग को 2 नंबर मिलेंगे। और ऐसे करके 8 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर हम जनरली लिख रहे हैं जो ऑडिट रिस्क नहीं है, रिस्क है, लेकिन हम बता नहीं रहे कि हाउ दिस ऑडिट रिस्क कैन बी मैनेज्ड, नंबर नहीं मिलेगा, वो सब पोर्शन का नंबर कटते जाएगा। हियर रिलेटिंग टू पेटेंट ट्रेडमार्क हमने एक्वायर किया, 4 इयर्स लाइफ है। फिर उसके बाद वन वी एक्वायर द पेटेंट, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा चेंजेस किया, 1,60,000 में एसेट्स को डिस्पोज किया। यहां पर क्या ऑडिट रिस्क है? व्हाट इज द ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड देयर? व्हाट इज द ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड देयर? I will say that the audit risk relating to ownership and valuation of assets. आपने पेटेंट खरीदा, कैसे माने कि आपका पेटेंट है? That means auditor need to check the documents relating to patents acquisition.
द इनवॉइस, द राइट्स, द एग्रीमेंट कि 4 years nobody else can use, आपको वो देखना है. द वैल्यूएशन, हाउ दे गॉट द 8 lakh का वैल्यू. Because auditor is concerned कि whether the assets are acquired by the company, whether it is belong to the company, whether the company can capitalize that asset. Because intangible asset you can capitalize, or tangible asset when the control of the assets belongs to the company. The benefit we are going to get for more than 1 year, and they are going to help in generating economic income. तो वो सब बात सही लग रही है, लेकिन हमको उसको चेक करना है. Disposal, the decision relating to disposal of an asset should be taken by a concerned person. When the disposal was done, how the disposal was done, how we have connected with persons who can buy the assets, whether it was properly disposed of, whether we received the money or not, because आपको पैसा में, whether the recording of the disposal is recorded properly in the asset account, accumulated depreciation deducted from depreciation, assets cost deducted from there, whether loss calculation properly. इतना नहीं लिखना है, लेकिन एक बात कर रहा हूं कि इससे 2 रिस्क एक साथ निकल रहे. एक एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, उसका वैल्यू, उसका ओनरशिप, और दूसरा जो डिस्पोज किए. डिस्पोजल से रिलेटेड उन्होंने अलग से क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर्स, वहां भी लिखेंगे. तो यहां पर उतनी बातें नहीं करेंगे, यहां केवल खटाखट पॉइंट को खत्म करना है. Quality control describe the audit supervisor responsibilities in relation to supervising and reviewing the audit assistant's work during the audit of H company. 4 नंबर का है. अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो 4 पॉइंट, अगर आप थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर चीज को समझाते हैं तो 2-2 पॉइंट भी चलेगा. अब एग्जामिनर ने क्या सोचा वो तो उसकी मतलब है, बट डिस्क्राइब द ऑडिट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग द ऑडिट असिस्टेंट्स. कि मान लीजिए हम लोग सुपरवाइजर हैं और हम लोग के अंदर 4-5 लोग ऑडिट असिस्टेंट से जो ऑडिट करने जाएंगे, तो हम लोग उनको क्या सुपरवाइज करेंगे. व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग द ऑडिट असिस्टेंट्स वर्क ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ हर्लिम. ये कंपनी का ऑडिट करने के टाइम पे आप अपने ऑडिट स्टाफ को क्या सुपरवाइज करोगे, क्या बोलोगे आप उनको. मान लीजिए जब मैं आप लोग को पढ़ाता हूं तो फर्स्ट क्लास अपने चालू करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये मटेरियल है, ये रेफर करना है, ऐसे एग्जाम का पेपर है ये. फिर रेगुलरली क्लास तो सुपरवाइज करना ही हुआ ना, कि आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे एग्जाम पास करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है. तो वैसे ही जो ऑडिट सीनियर है वो अपने ऑडिट स्टाफ को क्या सुपरवाइज करेगा, क्या बोलेगा उनको रिलेटिंग टू दिस क्लाइंट. ठीक है, इंग्लिश नहीं बोलना है, अनम्यूट करके बोलिए. व्हाट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिलेटिंग टू व्हाट. सर वो ये चेक कर सकता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक काम है या नहीं है. उसे एक दो मतलब इनके सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता है. या फिर क्या बोलते हैं सुपरवाइज में ये भी कर सकते हैं कि गाइडिंग, कि अगर जैसे कहीं को अटक रहे हैं कि सर ये एरियाज को कैसे टैकल करना है, तो उसमें भी गाइड कर सकता है. सर ये भी सुपरवाइजिंग में आ जाएगा. या फिर किसी जिसका कोई भी उन्होंने काम किया है, ठीक है, तो उसका 1-2 डॉक्यूमेंट चेक कर लिया है सर, तो पता चलेगा कि हाँ ये काम कर भी रहे हैं. ऐसे मतलब नहीं बोल रहे कि हम, यानी कि हम लोग इसको अगर बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडिट पे जाने के पहले हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंट प्लानिंग बनाते हैं. प्लानिंग में क्या होता है, या तो वो नैरेटिव डॉक्यूमेंट्स होता है, या फ्लो चार्ट होता है, या क्वेश्चनियर्स होता है. ऐसा करके डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं. तो हम अपने सुपरवाइजर ऑडिट स्टाफ को बोलेंगे कि जब आप ऑडिट करेंगे तो जो हमने जिस चीज के लिए जो ऑडिट डॉक्यूमेंट तैयार किया है आप उसका ऑडिट उसी हिसाब से करेंगे. मान लीजिए हम लोगों ने ऑडिट डॉक्यूमेंट तैयार किया है रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स का वेरिफिकेशन एंड चेकिंग के लिए, एक फ्लो चार्ट बनाया है या कोई नैरेटिव लिखा है, कुछ हमने बनाया है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप इसको फॉलो करेंगे ऑडिट करने के टाइम पे ये चार्ट को इसके अनुसार. फिर उसके बाद आपको अगर बोलना है
कि कोई पर्टिकुलर एरिया है जो कि जैसे ऑडिट रिस्क हम लोग लिखे हैं कि ऑडिट रिस्क इज देयर रिलेटिंग टू रेवेन्यू, ऑडिट रिस्क इज देयर, तो आप रेवेन्यू का चेकिंग में ये करेंगे और आप उसका जो भी चेकिंग करेंगे आप उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एविडेंसेस गैदर करेंगे जहां पर भी आपको इश्यूज आएगा। बिकॉज हरलीम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हरलीम कंपनी में नॉन करेंट एसेट का इश्यू है, हरलीम कंपनी में रेवेन्यू का इश्यूज है। तो हम लोग अपने ऑडिट स्टाफ को बोल रहे हैं कि आप हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो ऑडिट डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, साथ में एविडेंसेस गैदर करेंगे, एविडेंसेस को लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, केवल चेकिंग नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एविडेंसेस गैदर करके लाएंगे। और साथ में जब भी आप काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम होएगी, आपको कहीं पर भी इश्यूज आएगा, आपको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे से कम्युनिकेट करोगे। और हर वीक मान लीजिए 5 दिन 7 दिन बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और आपका वर्क को मैं इवैल्यूएट करूंगा कि आप जो काम किए हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। उनका बिजनेस को बताएंगे, सिंस वी हैव डन द ऑडिट फॉर 7 अर्लियर ऑल्सो, तो ऑडिट स्टाफ को बोलेंगे जस्ट गो थ्रू द लास्ट ईयर फाइल्स ऑल्सो, व्हाट आर द लूप होल्स इन द कंपनी, व्हाट आर द रिस्की एरियाज, आप उसको जानकर जाएंगे, जिससे कि व्हेन यू गो फॉर ऑडिट यू विल बी एबल टू डू द वर्क विथ नॉलेज, विथ रैशनल वे। क्या लग रहा है? मैं सोच रहा हूं, बिलीव करिए, मैं ये सोच रहा हूं मेरे को आंसर नहीं लिखना है, मैं सोच रहा हूं मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट के यहां मेरे साथ मेरे बहुत सारे स्टाफ भी जा रहे हैं, तो मेरे को क्लाइंट के बारे में सोचना भी है, मेरे को रिस्क को मैनेज भी करना है, मेरे को अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस भी देना है जिससे वो सही ऑर्डर में, सही वे में ऑडिट कर पाए। तो जब मैं ऐसे सोच रहा हूं तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स बन रहे। व्हाट आई एम सेइंग दैट, बिलीव करिए विद्या कसम, मैंने ये क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं खोला है, मैं आपके सामने ही खोला हूं, अभी पहले बार ही पढ़ रहा हूं। और आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट इन ऑडिटिंग बिकॉज दैट इज नॉट माई एक्सपर्ट फील्ड। माई एक्सपर्ट फील्ड इज अकाउंटिंग, फिनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है। ऑडिटिंग मेरा एक्सपर्ट फील्ड नहीं। बट देन व्हेन आई एम रीडिंग ऑडिट और पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचकर उसको डिस्कस कर रहा हूं, नॉट थिंकिंग अबाउट एग्जामिनर ने क्या आंसर लिखा, किसी ने क्या लिखा, वो बात की बात, बिकॉज एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। बट इफ यू आर प्रैक्टिकल इनफ यू कैन वेरी वेल मैनेज दिस सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और मान लीजिए क्लास में नहीं, आप सोच ही नहीं पा रहे क्या लिखना है, आप एकदम जनरल बन के रखे हैं, बस आंसर लिखना है इतना, तो आंसर बहुत खराब आएगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग इनटू द शूज ऑफ दिस क्वेश्चन, जब तक आप ये फील नहीं करेंगे आंसर आएगा कैसे? जनरल बातें ही लिख पाएंगे ना, तो नंबर भी फिर जनरली मिलेगा और उसमें भी बहुत सारी गलती होंगी और फिर हम लोग बोलेंगे हमें नंबर नहीं दिया, वापस रीचेक के लिए भेजना है, कोई फायदा नहीं है। इफ यू राइट प्रॉपरली यू विल गेट मार्क्स, इफ यू डोंट राइट यू विल नॉट गेट मार्क्स, सीधा। Describe substantive procedures that auditors should perform to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to valuation of trade receivables in the current year. Trade receivables से related उन्होंने ये पैराग्राफ दिया था, provisions वाला। Finance director has informed that significant customers granted a payment break of 6 months as it has been experiencing financial difficulties. H company maintains an allowance for trade receivable and it is anticipated that this will remain at the same level for prior years. और ये भी पैराग्राफ को हम ट्रेड रिसीवेबल से को रिलेट कर सकते हैं। ये 2 पैराग्राफ है जो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है, दे आर आस्किंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑन दिस। और ये पैराग्राफ है जो डिस्पोजल ऑफ एसेट से रिलेटेड है, दे आर आस्किंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर दिस। Substantive procedures के अंदर we should be writing assertions. Assertions is existence, completeness, valuation, accuracy, then what I should say, that it arises, it is recorded properly, accounted for properly. Assertions का टेस्टिंग करना है। पहला क्वेश्चन में वैल्यूएशन assertions बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का चेकिंग करना है।
This is always substantive procedures will be followed based on material items. आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, कंट्रोल को चेक किया, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहां पर प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट एरियाज है, मिस स्टेटमेंट की चांसेस है, तो आप उनका डिटेल्ड चेकिंग करोगे, आप उनका सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉलो करोगे. डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म to obtain sufficient appropriate evidence in relation to valuation of trade receivables in the current year. Describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient appropriate evidence in relation to the valuation of trade receivables in the current year. आप substantive procedures as an auditor क्या perform करोगे evidence gather करने के लिए relating to valuation of trade receivables? आर्यन जी क्या करेंगे? अबू बकार, what we will be doing? Unmute yourself and then say. Yes, morning. Still I'm understanding question. Yes, sir. The valuation can be checked based on invoices, based on goods delivery notes, based on payment received. वहीं से वैल्यूएशन चेक होता है. अगर मैं बोलूंगा कि मेरा कोई कस्टमर से पैसा बाकी है, कोई स्टूडेंट से, तो हमने उसको क्लासेस दी होंगी, वो क्लासेस कर रहा होएगा, हमारे पास कोई प्रूफ होगा कि फीस इतनी है, उसने बैलेंस पेमेंट नहीं किया है, कुछ तो होगा ना, तभी तो वैल्यूएशन में जाएंगे. सो फर्स्ट वी नीड टू चेक द इनवॉइसेस, कोरिलेट द इनवॉइसेस विद द गुड्स डिलीवरी नोट्स, that whether the goods are delivered to the customer, whether the invoice is prepared properly, whether the invoice has rates, amounts are proper as per the GDN, वो देखना है. वैल्यूएशन का पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, जब वो लोग खुद ही बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि they are reducing the allowances level. Earlier they were doing 10% allowance, now they are doing 5%, not 10% allowance. What is 10%, 5%? That was returning. Relating to return, earlier they were thinking 10% return hota tha, yani ki abhi they are recording more revenues in the books. So we need to check that on what basis they are reducing from 10% to 5% return. We need to check that, as we said earlier, last 2 months invoices, major amount of invoices, that where the goods are sold on approval basis to wholesalers, and what is the position at the end. Whether the customer has money, whether the wholesaler has already sold that, whether they have communicated that, they have purchased that, customers ne bataya hai kya? How can we say that it can be treated as a sale? That need to be checked. Then we can say that the valuation involves provisioning. Already the customers are there, those who are in financial difficulties. The general provision can be done when we don't know about specific customers. When we know about specific customers कि उन लोग का condition खराब है, तो उनके against में तो provision should be properly created. What communication has been done by the organization with these customers? What is their financial condition? Whether they will be able to pay or not, the provisioning should be done properly, so that whatever value we will be recording in the financial statement, receivable minus allowances, that figure would be correct. The auditor need to check that. और अब 3 नंबर बोला है तो और कितना जोश में जाएंगे? इससे ज्यादा तो जोश में नहीं जा सकते. Because beyond that, if you start writing, then in that case you will not be getting time in the exam to complete. But एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं.
Substantive procedures the auditor should perform relating to disposal. For disposing assets, there should be an approval in the organization that these assets are not going to be used in the business. They are not required. Who has said that? You need to check. When the disposal is there, then the disposal hone ke liye, which is the market where we have analyzed that disposal can be done here. How we have identified the buyer for the goods. What is the process followed to identify the buyer? Because it's a second-hand assets. When the disposal was done, what was the carrying value of the assets in the books? What is the sale price? Whether the profit is properly calculated and disclosed in the books of accounts. Whether the asset disclosed are adjusted from the cost of the assets, the accumulated depreciation adjusted from accumulated depreciation done or not. Whether the asset disposed are recorded in the asset register as sold out. Whether they are incorporated in the asset register or not. Substantive procedure मतलब आप डिटेल में चेक करेंगे और 1,60,000 लॉस is not a small amount because they have written the figures in thousands. These are thousands. So 1,60,000 will be coming 160. If you compare as compared to profit, 450 आपका PBT है. Profit after tax उससे भी कम है. तो 160 is coming greater than 5% of that. Anything which is material, 1% of 0.5% of turnover, 5% of PBT or 1% of total assets which is treated as material, and those material items need to be checked substantially with sample basis only so that the auditor can give true and fair view about the financial statements of the company. मतलब मेरे हिसाब से ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 16 नंबर गड़बड़ क्वेश्चन मेरे हिसाब से. मे बी कई मार्क्स यहां कट सकता है थोड़ा, इफ यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन प्रॉपरली कि सुपरवाइजर्स को क्या, बिकॉज जनरली स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ओनली, बस कुछ भी लिखने लग जाएंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एग्जैक्टली आस्किंग. जब समझ में आएगा क्या पूछ रहे हैं, अच्छा लिखेंगे आप, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर. नाउ सपोज Abdullah has done this question. That means Abdullah is doing the questions from exam kit. लेकिन in the class, Abu Bakar, Adrija, Ajitab, your first class, forget this. Ashish Vyas ji. Then I will say Lalit ji, Aline, Somajit, because you are not giving exam, benefit of doubt given to you, Thilak. मेरे को पता है कौन कौन क्या पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट दैट यू ऑल नीड टू से. अबू बकार इज लैगिंग बिहाइंड इन द क्लासेस. वेदर यू आर एबल टू डू लाइव और नॉट डजेंट मैटर, बट कंडीशन इज वेरी बैड इवन दो यू हैव फिल्ड द एग्जाम. ललित जी सेम कहानी आपका भी है, सेम स्टोरी आपका भी है. कंडीशन खराब है, केवल बोल रहे हैं, करनी और कथनी में बहुत फर्क है. सो यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शंस. Adrija, I don't know about you 100%, but मेरे को लगता आप कर रहे होंगे, कोई डाउट्स नहीं है. I use the same story. Aline, the condition is better than Lalit and Abu Bakar, but need to improve because आप पूरा चीज, सारी चीजें जैसे पढ़नी है वैसे नहीं पढ़ रहे हो. Somajit not giving exam, Thilak to not giving exam because you have not filled up the exam form, I know. And now you cannot fill up. Yesterday was the last date, but you still need to think that even though not giving exam in March, June to aayega. So if we are not studying in the right direction, June also we will not give exam. Or if we give exam, the condition will be further deteriorated in June because the live classes for auditing will not be there at that time. आयुष जी और एलिन का कंडीशन एक ही है, अभी तक एग्जाम किट से क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, जबकि एक एक टॉपिक से जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे एग्जाम किट से क्वेश्चंस करना है. सो कंडीशन एज पर मी, अद्रिजा एंड आशीष व्यास इज बेस्ट. देन आई विल से दैट सेकेंड लेवल आयुष और इलीन. देन द थर्ड लेवल आई विल से अब्दुल्ला, नॉट अब्दुल्ला, अबू बकार और ललित जी. एंड देन सपोज Abdullah has done this question
ये क्वेश्चन डिस्कस करते हुए हम लोग कितना देर हो गया? 1.5 आवर हो गया। जब आप कोई टॉपिक पढ़े, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर टॉपिक, some of the questions in the topic are not following the time frame. When you go in the exam kit, then follow the time frame. But जब आप टॉपिक को कर रहे हैं, उसका 360 डिग्री करिए। आप एक क्वेश्चन को इतने तरह से सोचेंगे, समझेंगे, आंसर प्लान करेंगे, पीछे से देखेंगे, उसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, ऑटोमेटिक स्पीड विल कम, ऑटोमेटिक। बट नॉट दैट इफ यू हैव डन द क्लास और या आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, बस सीधा आप देखने लग गए। नहीं भाई, बिकॉज इफ यू हैव डन द क्लास, आई हैव टॉट यू, बट द सुपरविजन विच इज गिवन टू यू, यू आर नॉट फॉलोइंग। तो पढ़ने के बाद भी फिर और ज्यादा नंबर नहीं आता है। मे बी वी आर स्कोरिंग 50, 55, 60, वाई वी आर नॉट गेटिंग 80? कोई तो ला रहा है ना 80, मैं क्यों नहीं? इज आई एम नॉट स्टडिंग। अब्दुल्ला जी, क्या नहीं स्टडी? आप कितना पढ़ते हो यार? नंबर 80 आना पड़ेगा इस बार, 70 भी नहीं चलेगा। वर्ल्ड रैंक 1 लाना है, लेकिन वो डायरेक्शंस को पकड़ना होगा जो मैं फर्स्ट क्लास से बोलता हूं कि जब क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि राइट है रॉन्ग है। क्वेश्चन ऐसा करिए कि वैसा 10 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब आपके आंसर्स में जाते हैं। सो यू हैव गिवन ओनली सबमिशन बी। आपको लगा और सब बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग, दिस इज 201 डिफरेंट क्वेश्चन। अच्छा ओके, बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग कोई जगह से रटने का जरूरत ही नहीं है जिंदगी में। इफ देयर इज नो प्लानिंग, नो सक्सेस विल कम। प्लानिंग ऑफ स्टार्टिंग द बैच, प्लानिंग ऑफ विच मटेरियल वी रेफर, प्लानिंग ऑफ विच क्वेश्चन बैंक वी रेफर, प्लानिंग ऑफ हाउ वी विल कंप्लीट द स्टडी, हाउ वी विल बी डूइंग द क्लासेस, प्लानिंग ऑफ डूइंग द मॉक पेपर्स, सारा चीज प्लान से ही होता है। बगैर प्लानिंग जिंदगी में कुछ नहीं होना है। एवरी डे विल गो ऑन पासिंग, इफ देयर इज नो प्लान, नो अचीवमेंट। सिमिलरली ऑडिट में भी क्लाइंट का ऑडिट करने जाएंगे तो प्लानिंग करना जरूरी है। What is the nature of the industry, whether the client we have done the audit earlier or not, again audit करने जा रहे हैं कि पहले बार जा रहे हैं, उसका क्या इंडस्ट्री है, उसमें क्या नेचर्स होता है, क्या रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है, कहां पर रिस्क है, उसका एक बार एनालिसिस करेंगे, फिनेंशियल्स का एनालिटिकल रिव्यू करेंगे, कहां पर रिस्क है, ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स, फ्लो चार्ट और दिस, उसके बाद तो ऑडिट करने जाएंगे ना। उससे क्या फायदा होएगा? सही ऑडिट कर पाएंगे, save time, will be able to give proper view about the financials of the company, will be able to bring reasonableness in our report, will be able to help the general public who will be relying on the basis of the financial statements of the company. फायदा होगा और क्या होएगा? Because auditor is a public servant. Auditor is not that as a, you can say it's a public, like doctors, lawyers, auditor is a public servant. उसको इतना बढ़िया से ऑडिट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ बोले, ठीक है तो ठीक बोले। दैट इज द जॉब ऑफ द ऑडिटर। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द रेशियोज कैलकुलेटेड, डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। अब जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, मे बी अब्दुल्ला यू हैव रिटन, यू बिकम एग्जामिनर, आप एग्जामिनर बन जाइए। अब मत सोचिए आपने आंसर लिखा है, क्रिटिकली इसके अंदर मान लीजिए यू रिटन करेक्ट, बट यू थिंक आई कुड हैव रिटन दिस, आई कुड हैव, तो अब मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं। ये नहीं कि खराब है अच्छा है, वो बात की बात। क्रिटिकल एनालिसिस। हरलीम कंपनी परचेज द पेटेंट 1 year ago for 8 lakh. पेटेंट इज रिक्वायर्ड टू एसेस 1 year ago, मतलब लास्ट ईयर है क्या पेटेंट? 1 second. 30th September 2014. ओके, एंड आवर ऑडिट पीरियड इज 30th September. ठीक है सर। Patent is required to assess for impairment at least annually, and appropriate depreciation expense should be recorded, which is a judgmental area. There is possibility patent value could be overstated and depreciation expense, impairment expense could be understated. Response: auditor should assess depreciation policy of the company, investigate any circumstances exist which impair patent value. Based upon auditor investigation, the auditor should discuss with management about something found unreasonable
to conclude patent value recorded appropriately. Just I'm coming. Everybody think that what can be the flaws in this, whether it is correct, whether 2 marks on these 2 points will be given or not, how it can be written in a better way, or everything. Think, sabhi koi, not only Abdullah. Just give me 1 minute. If I am the examiner, I will be giving in this 1 or 1.5 marks, not full 2 marks. Reason being that Harleem company purchased the patent 1 year ago for 8 lakh. Patent is required to assess for impairment at least annually, and appropriately depreciation expense should be recorded, which is a judgmental area. Patent is required to assess for impairment at least annually, and appropriate depreciation expense should be recorded, which is a judgmental area. There is possibility value could be overstated and depreciation expense impairment. No, I will give 2 marks. मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया था. आपने यहां लिखा कि रिस्क है कि इंपेयरमेंट हुआ है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. डेप्रिसिएशन ठीक से नहीं लिखा. अभी यहां लिखा कि ऑडिटर शुड असेस डेप्रिसिएशन पॉलिसी and investigate any circumstances exist with impairment value. Based upon auditor investigation, the auditor should discuss with management about something found unreasonable to conclude patent value recorded appropriately. 2 नंबर मिलेगा इस पे. बट फिर भी मेरे को क्या बोलना है, आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा लिख रहे हैं? What do you think all? Because अभी एग्जाम नहीं चल रहे, लेकिन अपने इतना लाइन लिख रहे हैं, तो can we able to complete this within the 22-23 minutes 8 points? What do you think? तो थोड़ा सा स्ट्रेट लैंग्वेज अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होएगा. In place of saying this language, you don't write, you just write valuation of patent risk. The patent acquired last year, there is a chance that it is not properly impaired, or the depreciation amortization is not properly recorded. तो 1-2 लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा, और फिर यहां पर भी उसके बेसिस पे अपने लिखेंगे तो अपने क्या टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे पेपर. What whether they have written this much, I want to go into their solutions also. 203.
203. I think this is the question. Two 203. At here around 262, around 250. Two 203. Party asks for specific ratios to be calculated from the information provided. The question specifically states that the formulas are not required. Therefore, do not waste your time by typing these out. जो मैं GP by sales लिख रहा था वो लिखना नहीं है. Part B asks for, केवल आपको 2 साल का रेशियो निकालना है. 4 ratios. Part B asks for audit risk and response. The requirement is examined every sitting. मतलब इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है. You must make sure that risk relates to either a risk of material misstatement or a detection risk. Material misstatement means assets, liability, income, expenditure are not at correct value. Or detection risk means कि जब company is having some system, internal control system and all that, लेकिन कंपनी के सिस्टम से वो पता नहीं चलेगा. ऑडिटर को अलग से बुद्धि लगानी होगी. Read through the scenarios to identify information which relates to something that will appear in the financial statements. Intangible assets, property, loans, briefly explain the accounting treatment that should be applied. Think about common mistakes that the client could make either deliberately to manipulate the financial statements or unintentionally. State whether the item in financial statement is as risk of under or overstatement. The response must be response of the auditor, not the client, and must directly relate to the risk you have given. The response may be a procedure or may be an approach that the auditor will take. Response मतलब आपको ऑडिटर को करना क्या है रिस्क से बचने के लिए. Part C cover additional control procedures in respect of supervision and review of audit team work. Think about the role of supervisor and purpose of the review of the working papers. Ask for substantive procedures in respect of trade receivable. You must give answer which focus on valuation, as marks will be awarded for procedures which test any of these assertions. Ask for substantive procedures in respect of disposal of plant and machinery. You must focus on the requirement. Any procedure which relate to plant and equipment in general will not consume marks because it is asking only for a disposal. ये जो उन्होंने यहां पर लिख कर दिया ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बस सीधा यही लिखना है. ये तो you will refer, then you will not be able to understand कहां से आया इसलिए. Relating to intangible assets, what they have written. The company purchased the patent for 8 lakh at the end of the prior year, which has a useful life of 4 years. The carrying amount is the forecast financial statement is 8 lakh, which is the same as the prior year. In accordance with IAS 38 intangible assets, this intangible assets should be amortized over its useful life 4 years. It does not appear that management has correctly accounted for the amortization. Intangible assets and profits are overstated. Agree the useful life of the patent in 4 years to supporting documentation.
The amortization changes should be calculated and appropriate journal entries, journal adjustment discussed with management in order to ensure the accuracy of the charge and the intangible is correctly valued at the year end. मैं ऐसा बोलूंगा, मैं अगर एग्जाम में हूं तो मेरे को ये 8 लाख लिखने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज इतना ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा. हाँ, ये बात जरूर है कि सिंस दे आर सेइंग दैट, जो हमको मेरे को भी ध्यान देना चाहिए था, सिंस वी परचेज्ड इन September 14 and it is September 15, 1 year gone and 4 years life, so 1 year depreciation should have been done. That is not done. Why it is not done? They need to explain. Because depreciation is normal wear and tear. Even though the asset is not depreciated, then also depreciation need to be charged. And relating to patent, whether there is any impairment, वो हम लोग को टेस्ट करना है, और उसके लिए हम पेटेंट का डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे. लास्ट ईयर भी किया होगा, उसको लास्ट ईयर का फाइल को निकाल के देखेंगे. एमोर्टाइजेशन वाई नॉट चार्ज, शुड बी चार्ज, हम लोग उसको बोलेंगे. और द एमोर्टाइजेशन चार्ज शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द पेटेंट. और भी कुछ लिखा है क्या इन्होंने पेटेंट से रिलेटेड? तो खराब नहीं लिखा है आपने, बट आई विल से दैट द फोकस विच दे आर सेइंग इज व्हाट, क्या चीज गलती है. Whether the profit is overstated, understated, assets are overstated, asset understated, आप रिस्क में उसको बताइए. You say that in the risk, then in that case that will be better. And then उसको बचने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए आपको क्या करना है, what auditor will do to check that, that is audit procedures. For that risk to manage under control, what the auditor will be doing, what instructions the auditor will be giving to the client, to the staff, or what the auditor will be doing, that is auditor response. मतलब in this part 2 marks given to you, no problem. But मेरे को केवल इतना लग रहा है कि this is very lengthy. H company performed a review. As part of this review, surplus item of plant and machinery were sold, resulting in a loss of 160. The plant and machinery sold at loss could either be sold by management to close relative at significant lower prices, or earlier depreciation applied was inappropriate. अगर सीधा इतना लिखें, there can be fraud possible, बस जल्दी हो जाएगा ना. There is also a risk of payment due to receive from vendor. If the sold on credit, then whether the payment is received or not, so overstated receivables. If the machine sold on credit, auditor should be specifically about receivable balance in relation to plant. An investigation should perform to conclude receivable balance recorded appropriately. 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट फिर भी मैं उनका भी देखना चाहता हूं एक बार. दिस इज रेवेन्यू. Surplus plant and machinery was sold during the year, resulting in a loss of 160. Significant profit or loss on disposal are an indication that depreciation of plant and machinery may not be appropriate. Therefore, the depreciation may be understated and the profit on the assets are overstated. ठीक है? Recalculate the loss on disposal and agree all items. Discuss the depreciation policy of plant and machinery. मेरे को केवल अब्दुल्ला जेन्युइनली बोलना, जब आपने ये आंसर लिखा है तो आपने लिखने के पहले एक बार आंसर्स पढ़ा था जेन्युइनली. Why I am asking this, I will be telling you. एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा फीलिंग ये आ रहा है कि जैसे आपका भी सब फर्स्ट पैराग्राफ में फिगर्स आ रहा है कि 1,60,000 हम लोग को सेल किया है, फिर यहां पर 8 लाख का पेटेंट खरीदे हैं. मतलब सब जगह फर्स्ट ये आ रहा है फिगर कि आप इस चीज का रिस्क को बता रहे हैं. अच्छा लग रहा है, गुड. अगर आप अपने आप सोच पा रहे हैं, क्योंकि मैं इस दिशा में सोचा नहीं था. इफ यू आस्क मी, I have copied. No, not getting. मतलब सर मैं कॉपी करके सर वो पेस्ट कर रहा था. सर ये क्या बोलता है, हालैंड कंपनी परचेज्ड अ पेटेंट फ्रॉम. हाँ हाँ, वो चलेगा. माने मैं तो सोच रहा था कि मेरे को ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिखने से अच्छा है. नहीं सर, लिख नहीं रहा था अपने आप में सर, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा. अरे नहीं, माने कॉपी पेस्ट भी आपने ये सोचा ना कि भाई मेरे को पहले ये लिखना चाहिए कि 8 लाख का एसेट्स है. क्यों ये लिखना चाहिए? बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं कि ऑडिट रिस्क होता क्या है. अंडरस्टैंड एवरीबडी व्हाट वी आर सेइंग. ऑडिट रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट. तो अगर एसेट्स का वैल्यू बहुत जोर का है, 168 लाख रेवेन्यू, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है ना. सो इन ऑडिट रिस्क यू नीड टू मेंशन दैट अमाउंट दैट इट इज मटेरियल. तो मटेरियलिटी के लिए वो चीज लिखना जरूरी है.
साथ में क्या लिखना ऑडिट रिस्क में, बिकॉज ऑफ दिस मेटीरियलिटी, बिकॉज ऑफ दिस मेटीरियल अमाउंट, हाउ द एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर कैन बी ओवर और अंडर स्टेटेड। आपको ऑडिट रिस्क में ये लिखना है, और फिर उसके बाद आप ये ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे। तो अच्छा लिखा है आपने, बढ़िया, अपने आप ही बढ़िया सोच रहे हैं आप यार। मैं नॉर्मली जब अभी सोच रहा था तो मैंने ये फिगर्स नहीं सोचे थे कि मैं 8 लाख लिखूंगा। मैं सोच रहा था कि आई विल बी राइटिंग दैट एंड व्हाट ऑडिटर विल बी डूइंग, बट मेटीरियलिटी विल बी मोर, ऑडिट रिस्क विल बी मोर क्रिस्प व्हेन यू विल बी राइटिंग द फिगर्स अमाउंट। अगर बिकॉज उन्होंने बोला ऑडिट रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेटीरियलिटी एंड ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एसेट्स लाइबिलिटी। रिस्क के अंदर ये बात जानी चाहिए, और ये रिस्क को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, आप वो बताओगे। सर ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था। हाँ। तो मैंने पहले वाला देखा था तो मैं थोड़ा उसमें गलती था, फिर मैंने उन्हें एनालाइज किया, उसके बाद मैंने अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट किया। तो अच्छा किया है। एक वर्ड भी नहीं देखा था। हाँ, तो यानी कि अच्छा इंप्रूवमेंट बढ़िया हुआ है, क्योंकि मैं बोलते वक्त मैं ये सोच रहा नहीं था कि मेरे को 8,160,000 लिखना है, लेकिन लिखने से नंबर अच्छा मिलेगा, बिकॉज दैट इज फोकसिंग ऑन मेटीरियलिटी। Financial controller of H company was dismissed. She has threatened to sue the company for unfair dismissal. There may be circumstances that the company has to pay unfair dismissal. The provisions for disclosures IS 13 relation to outflow. The provision liability could be understated or disclosure could be missing in the financial statement. If necessary disclosures are given or unnecessarily, auditors would review the case file against Harleem company and discuss with management the requirement for provisions for disclosures. बढ़िया है सर, ये एकदम क्रिस्प हो गया, एकदम सुंदरता से, और ये वाला हो गया थोड़ा एक्सप्लेनेशन। बढ़िया सर, इसमें आपको 16 में 20 मिलना चाहिए सर। बिकॉज बहुत सुंदर लिखा, वेरी गुड। इन लोगों ने क्या लिखा है प्रोविजंस के बारे में, रेवेन्यू रिकग्निशन, फाइनेंशियल कंट्रोलर फ्रॉड। Harleem company has allegedly carried out a number of fraudulent transactions at the company. The investigator into the extent of fraud has only recently commenced. There is a risk that she may have undertaken a significant level of fraudulent transaction leading to an increased control risk, which is not yet been identified. Control risk लिखना चाहिए हम लोग को। These would, because control नहीं है ना, fraud क्यों हो रहा है? That means control are not there. These would need to be written off to the statement of PL if these have not been uncovered the year. नहीं, आपका अनफेयर डिसमिसल वाला था ना, सॉरी। इनमें द फाइनेंशियल कंट्रोलर वाज डिसमिस्ड एज थ्रेटनिंग टू sue the company. If it is probable that H company make payment to the financial controller a provision for unfair dismissal, if the payment is possible rather than probable, a contingent disclosures need to be given. If Harleem company has not done this, there is a risk that the completeness of a provision or contingent liabilities. मेरे को ये लग रहा है कि ये लोग आपके जैसे ही लिख रहे हैं, लेकिन इतना सारा हम लोग एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे इतनी बात। क्वेश्चन ये है, obviously model answers each perfect answer. The audit team should discuss with management, request confirmation from companies, lawyers, likelihood of the success and claim and all that. ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ राइटिंग बहुत सुंदर है, ठीक नहीं है, बहुत सुंदर है सर। आप खुद ही एनालाइज कर रहे होंगे कि आपने जो आंसर लिखा है बेहतरीन लिखा है, बेहतरीन, बेहतरीन इज द वर्ड। अगर ये लिखेंगे 16 में 16 मिल जाएगा, 15 भी नहीं मिलेगा। ओके सर, मुझे यही कंफ्यूजन आ रहा था, जैसे सर उन्होंने लिखा है कि अगर प्रोबेबल है तो सर प्रोविजन देना पड़ेगा। हाँ। वो लिख रहे हैं, मेरा आंसर में नहीं था। और अगर क्या बोलते हैं, आपने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, उतना उनको जोश है यार, उनको सब, वो थोड़ी ना 10 मिनट में लिखे हैं सर, वो सब लोग बैठ के 10 आदमी मिलकर 10 दिन में आंसर लिखे हैं सर, आप समझिए। There may be circumstances that the company has to pay for unfair dismissal, तो आप भी तो वही लिख रहे हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो थोड़ा अलग आएगा ही यार। यस आयुष जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। So the answer is perfect, sir. But एक चीज बस point out करना चाहूँगा, I could be wrong, sir. हाँ हाँ बोलिए भाई। सर शायद अब्दुल्ला ने सर ये लिखा था impairment, सर। तो I don't feel, सर, जैसे आंसर में भी, मॉडल आंसर में भी दिया हुआ सर, impairment नहीं होगा सर, amortization होगा सर, क्योंकि impairment इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन के कारण वैल्यूएशन लॉस होता है सर, I guess. ठीक है। इस पे सर 4 साल का बोलते हैं कि यूजफुल लाइफ है सर, हाँ। वैल्यूएशन होगा इंटेंजिबल एसेट का। So I think that can be. नहीं, मेरे ख्याल से मैं अब्दुल्ला से सहमत हूं, लॉजिक दे रहा हूं।
हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल रीजंस होना चाहिए, तो इंटरनल रीजंस उन्होंने दिया है। उन्होंने दिया है ना कि जब पेटेंट हम लोग खरीदे हैं तो उसके बाद डिफेक्ट्स निकला है। सर एक चीज सर, बट सर उन्होंने यूजफुल लाइफ की तो मेंशन किया सर, टास्क में यूजफुल लाइफ मेंशन किया। 4 years उन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग को 4 साल के लिए पेटेंट के बेसिस पे टायर बनाने मिलेगा। सर मैंने मेंशन नहीं किया, तो सर मतलब उसका मार्क्स ऐसा होता नहीं कि मतलब मैंने कुछ वहाँ सही नहीं है, अगर हम उन्होंने लाइफ लिखी है मॉडल, हाँ। मैं नहीं लिख पाया। नहीं सर, ऐसा थोड़ी। एक बात सोचिए कि एग्जैक्टली वो लोग या कोई भी मैं जो सोचूंगा आप वही वर्ड कैसे लिखोगे यार। इसीलिए तो मैंने क्या बोला कि आपका हर पॉइंट में ये कैसे आया यार, इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आंसर लिखा गया है देखने के बाद, नॉट दैट कॉपी करके, बट देखने के बाद, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली यार 8 लाख 1,60,000 ये कैसे आया, मेरे को ऐसा लगा। तो हाँ मुझे थोड़ा यही कंफ्यूजन था कि वो लिख रहे कि क्या मतलब लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, मैं लाइफ से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लिखा कि जैसे हाँ चलेगा यार, माने इंपेयरमेंट का यहां लॉजिक है बिकॉज एसेट्स का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। एसेट्स का वैल्यू दो तरह से गड़बड़ होता है, एक एमोरेटाइजेशन और दूसरा रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट। तो इंपेयरमेंट तो हो सकता है ना कि हम लोग को वो एसेट्स 1 साल खरीद लिए और अभी तक हम लोग को उसके अगेंस्ट में प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाया। सो इवन दो द लाइफ इज 4 years बट मे बी रिविजन इन लाइफ, मे बी सम इंपेयरमेंट नीड टू बी डन, उसके बाद बैलेंस और 3 साल डेप्रिसिएशन होएगा, हो सकता है। बिकॉज सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर है यार कि इंपेयरमेंट के बारे में लिखा जा सकता है, रॉन्ग नहीं है। और फिर भी एक एग्जामिनर सोचो यार, एक एग्जामिनर सोच रहे कि आप इतना सारा चीज लिखे हो और सब में आपका लॉजिक है क्या नहीं है। अच्छा यहां क्या लिखा आपने, बोनस इश्यू, there is a risk that transaction might not be recorded accurately, the breakup between share primary value and premium value may not be accurate, the financial। लेकिन अभी तो हमने बोनस इश्यू किया नहीं है ना यार, क्या उन्होंने भी ये लिखा है? मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है। We have decided that for the current year we will be going for bonus issue, लेकिन वो तो हम लोग अभी किए नहीं है। Might not be recorded accurately, the breakup between share price primary value and premium value may not be accurate, the financial statement। Let's see एक बार, खाली ये लास्ट में देख रहा हूं कि रिलेटिंग टू शेयर इश्यू इन्होंने ये लिखा है क्या। बोनस इशू, एच कंपनी हैज इश्यूड शेयर्स, तो क्वेश्चन में लिखा है क्या कि बोनस शेयर कर चुके एच कंपनी, बिकॉज दे आर सेइंग दैट द बोनस शेयर ऑलरेडी डन, तब इन दैट केस आपका उनका दोनों ठीक है भाई। लेकिन क्वेश्चन में लिखा होएगा शेयर कैपिटल विद इन इक्विटी शुड इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड रिजर्व शुड डिक्रीज इफ द कंपनी हैज नॉट अकाउंटेड फॉर बोनस इशू बिफोर, there is a risk that it could have incorrectly treated equity being under or overstated, legal issues may arise if the share have not been issued in accordance with the company's statutory guidelines। बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट वगैरह ये सब होता है। the bonus issue required disclosures in financial statements, disclose करना पड़ता है कि this shares has been issued without cash, review treatment of bonus issue, agree the increase in the shares to share register, agree the correction in the reserves, review board minutes for authorization, review statutory constitution, review adequacy of the bonus issue। बोनस इश्यू यानी कि हो चुका है। आई थॉट दैट आई रेड दैट कि बोनस इश्यू हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग वी विल बी डूइंग नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर रीस्ट्रक्चर करेंगे तो तब इन दैट केस ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, बट हो गया तो इन दैट केस रेलेवेंट है। व्हाट आई मीन टू से दैट क्वेश्चन में अगर कोई आंसर गलत बोलता हूं और या मान लीजिए आपने गलत लिखा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत हुआ, क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि हम लोग गलत हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बाय डूइंग अ क्वेश्चन हाउ मच नॉलेज वी हैव गेन्ड। क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चंस और आगे करने के लिए तैयार हैं? क्या अब हम अच्छे से ऐसा आंसर लिख पाएंगे? वेदर वी कैन राइट सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर्स प्रॉपरली, क्वेश्चन इस बात का हो रहा है। आंसर क्वेश्चंस तो सभी प्रैक्टिस करेंगे, सभी एग्जाम देंगे। व्हाई दैट समबडी इज स्कोरिंग रैंक, समबडी इज स्कोरिंग 50, समबडी इज स्कोरिंग 40, 30, व्हाई? द रिजल्ट्स इज नोन इन एडवांस, इट्स नॉट दैट कि एग्जाम के बाद पता चलता है।
पहले से एग्जाम के टाइम पे प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है तो होता है. देयर आर मेनी हु आर स्टडिंग बट स्टिल दे आर नॉट पासिंग. आप अपने आप को चिंतन मनन करिए. बिकॉज आप सोचिए, अब्दुल्ला आपने ये आंसर मेरे को व्हाट्सएप में दिया था, मैंने व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई नहीं दिया. क्या ये 2 घंटा व्हाट्सएप में लगा पाते? क्या इस तरह से क्वेश्चंस को चीर फाड़ करके डिस्कशन कर पाते? इम्पॉसिबल. तो व्हेन आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑनलाइन लाइव, उसको चीर फाड़ करके पढ़ रहे हैं. लेकिन इफ आई एम नॉट टीचिंग ऑनलाइन लाइव एनी पर्टिकुलर, सपोज एफआर में अभी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अगर स्टूडेंट वो रिकॉर्डिंग करेगा प्रॉपरली और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, उसके डाउट भी कम आएंगे, उसको समझ में भी ज्यादा आएगा. शॉर्टकट नहीं मारना है कि मैंने तो लाइव क्लास किया नहीं, अब रिकॉर्डिंग जैसे तैसे कर लो और सारा पूरा फिर तो क्लास लेने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द क्लासेस? इफ यू ओपन Kaplan स्टडी टेक्स्ट you will read, you will open Kaplan exam kit, you will read, and then some questions you are solving and you want to just check. वो तो नहीं है. जब एक सब्जेक्ट उसको 360 डिग्री पढ़ना होगा. सो व्हेन वी आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एनी टाइम इन लाइफ, जब तक मेरा जीवन है रहेगा आगे, 360 डिग्री ही पढ़ेंगे. क्वेश्चन है तो ये नहीं बस आपने आंसर लिखा बोल दी हो गया, दैट्स ऑल, नहीं. लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट लाइव नहीं चल रहा है तो उसके बारे में तो वही करना होगा ना. बिकॉज क्या कर सकते उसके लिए? हर सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया भी नहीं जा सकता और स्टूडेंट भी नहीं है, दोनों ही बात है. वैसे हो तो भी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन एक सब्जेक्ट को 360 डिग्री डिस्कशन किया गया है. इफ समबडी इज नॉट गिविंग एग्जाम लाइक टिथ, नॉट गिविंग, तो क्या जून के लिए अलग से यही तो पढ़ना है और क्या है? जो डाउट होगा बता. लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, इसका मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है पढ़ाई करने में, कहीं तो इश्यूज है. बिकॉज मेरे को क्लास में सबको एक साथ इजी करके लाना होगा. नीड टू नो, मेक यू नोन दैट इफ यू आर नॉट स्टडिंग, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. क्वेश्चंस ये बोल रहा हूं मैं कि मान लीजिए आर्यन, मान लीजिए आपका 1-2 बार नहीं हुआ, प्रॉब्लम है सर, आप चेक करिए. आप देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर एफएम है, पीएम है, एफआर है, ऑडिटिंग है, आप लिख सकते हैं कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. वॉट एवर आई विल से यू विल नॉट फॉलो. हाउ वी विल पास द एग्जाम? एंड द कॉन्फिडेंस लेवल एट द टाइम ऑफ एग्जाम लो. ललित आपके लिए भी, कि चाहे हम लोग डिस्कशन वो कितना भी बार कर लें, लेकिन हमें पता है हम क्या गलती कर रहे हैं, फिर भी हम इंप्रूव नहीं कर रहे. और अब लास्ट टाइम है अभी. अब अगर इंप्रूव नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली निगेटिव रिजल्ट सामने आ जाएगा. आने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात का है वी विल बी बिकमिंग डीमोटिवेटेड. वो नहीं आना चाहिए. बिकॉज प्रॉपर एफर्ट्स नहीं है तो डीमोटिवेशन आएगा ना. जैसे मान लीजिए कल आपने 2 बार 3 बार बोला सर कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, पहले भी मैंने बोला वहां लिखा हुआ आ रहा है. इसमें दुनिया में अगर आप इंस्टीट्यूट को भी मेल कर रहे हैं, वो क्या बोलेगा? देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर कार्ड. व्हाई? इफ ऑन माई वेबसाइट यू आर मेकिंग पेमेंट, आपका कार्ड नंबर, आपका कार्ड का सीवीवी, आपका पासवर्ड मेरे को, मेरे स्टाफ को नहीं पता है, वेबसाइट पे आया ही नहीं है. वंस यू आर मेकिंग कार्ड पेमेंट, वो बैंक में चला जाते हैं. तो आपको जो मेल आ रहा है वेबसाइट से, वो बैंक से आ रहा है, आपकी बैंक से जिसका कार्ड आपके पास है. लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट समझने के लिए रेडी नहीं है. जैसे आप नहीं, वन स्टूडेंट वाज देयर इन द नॉलेज लेवल, सर आई हैव यूज्ड 3 कार्ड्स, एक भी कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है. अगर ऐसा होगा तो केवल आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होगा. होता है कभी कभी. देयर मे बी सम प्रोग्रामिंग चेंज इन द वेबसाइट, कोड वगैरह चेंज हो गया, नहीं हो रहा है पेमेंट, होता है. लेकिन वो एक जन के साथ नहीं, सबके साथ होगा. बिकॉज वेन एवर यू आर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली इन अ बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो पर्सन जिसको आप पे कर रहे हैं, जिस कंपनी को, उससे कोई ताल्लुक नहीं. वो आपके बैंक डिटेल से ताल्लुक है. बिकॉज दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन में आपका डिटेल दूसरे पार्टी को कभी नहीं मिलता है. अगर बैंक में जो स्टाफ काम करते हैं, उनके पास भी आपका आईडी पासवर्ड नहीं है उनके पास. फॉर दैट रीजन बैंक सेज व्हाट, whenever any staff is calling, don't say your password. इसलिए तो बोलते हैं ना, वो ऑटो है, तो वो बार बार अगर वही आ रहा है, वो एक ही गलती है. लेकिन फिर कंफ्यूजन कर रहे हैं अपने लिए, मेरे लिए क्या फायदा है, कोई सॉल्यूशन तो नहीं है. फिर भी मैंने आपको बोला इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिए, मेरे को पता है क्या जवाब आने वाला है. वी कांट डू एनीथिंग. बिकॉज मेरे को कोई बोलेगा सर ऑन योर वेबसाइट आई एम नॉट एबल टू पे, इट इज शोइंग दिस, उसके कार्ड में गलती है, मैं क्या करूं यार. हर चीज को प्रैक्टिकली समझना होगा जीवन में.
बात करने से कुछ नहीं होगा. Action speaks louder than words. So your action. Don't just be in the words, I will do this, that. Everybody. आगे बढ़े. अब्दुल्ला जी, जो ये वाला क्वेश्चन है आपने जो आज भेजा है, 1 सेकेंड. इसको भी पढ़ने का जरूरत है बिकॉज एरिया इज सेम. ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट रिस्पॉन्स. व्हाट डू यू थिंक? एज यू से. इसको एनालिसिस करना है. जब भी हम लोग आंसर्स पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ना जरूरी है. इंस्टीट्यूट ऊपर में आंसर के पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. मैं जब आपकी कॉपी चेक करता हूं मॉक टेस्ट में, ये सब फॉलो करता हूं 100%, नॉट 99. फिर उसके बाद जब आंसर्स लिखा गया उसके बाद भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद भी वो बंद नहीं होते हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ लिखते हैं वो लोग. मार्किंग गाइडलाइंस, ये मार्किंग गाइडलाइंस मैं फॉलो करता हूं व्हेन आई डू द मॉक टेस्ट. पता ही है 2-2 नंबर मिलेगा 8 में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. यहां पर मार्किंग गाइडलाइन, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग 4 नंबर का है. इतना पॉइंट्स उन्होंने लिखा है. 4 ही पॉइंट स्टूडेंट को लिखना है. यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लिखा है. 8 ही लिखना है, मैक्सिमम वही है. देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स 3 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन उन्होंने 6 पॉइंट लिखा है. क्यों लिखा है? so that if you read 6 7 8 points you will be able to understand कैसे लिखना है. 3 पॉइंट कौन सी ज्यादा मेरे को ध्यान है. आपको ये थोड़ी ना देखना है कि सारा पॉइंट्स मैंने लिखा कि नहीं. The answers are given for a teaching purpose. The answers are not given that you can write that in the exam. आप उतना नहीं लिख सकते. कोई भी नहीं, जो जिसने आंसर लिखा वो भी नहीं लिख सकता यार, कोई नहीं लिख सकता. When you are reading the answers, comparing your answer, become critical. Think that what you could have written, you have not written. Think that what you could not write because you don't know, but they have written this. मेरे को यहां इंप्रूवमेंट करना है. Make a notes of that. And if the question is difficult, which you want to revise later, आप उसका कॉपी पेस्ट करके बाद में रिवीजन के लिए रखिए. थोड़ी ना सारा का सारा क्वेश्चंस फिर से आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है. अगर आप वर्ल्ड रैंक 1 लाने वाले हैं तो भी रैंक उसी का आएगा जो सिस्टमेटिक है. Those who are systematic in the study, not that rank कोई 4 बार पढ़ने से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो अब्दुल्ला जी, इसके अंदर जाना है क्या? Now, the purpose of mine is not only explaining you. My purpose is to bring everybody on the same page. सबको बराबर जगह लाना है और थोड़ा सा उनको जगाना है जो ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, सभी को, कि भाई डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्टी यू हैव क्रिएटेड बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन द लास्ट क्लास वी वेयर डिस्कसिंग व्हाट, एक्चुअली डिस्कस्ड व्हाट. व्हाट वाज द एरिया वी वेयर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? Substantive audit procedures. Substantive audit procedures we were discussing in the last class. We completed discussion. We did some questions also. आज भी अभी substantive procedures आया, कुछ questions और करते हैं. Let's do some extra questions. There is no tension of completing the syllabus because दो ही चीज बाकी है, completion and review and report. एक क्लास completion review, दूसरा क्लास report. में भी एक क्लास और, क्या टेंशन है? तो आप सोचेंगे सर सर आप जहां खड़े हैं वहां से जो कर चुके उनको अच्छे से करना है. अब आप ये सब नहीं बोलेंगे सर आई हैव डन दिस दैट, ये सब नहीं यार. आई एम सेइंग फॉर एवरीबडी, इफ यू आर मीडियोकर, इफ यू आर बिलो एवरेज, सब कुछ. और आपको रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है. रिजल्ट एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब नहीं, अभी खुद दिखता है. सो वट एवर फ्लॉज आर देयर, ट्राई टू मेक अप. Try to do the study the way I said. Those who are new students, Abu Bakar,
माने कोई भी पहली क्लास का रिकॉर्डिंग फिर से करिए, व्हाट आई सेड, इवन दो आई, बट पहली क्लास का रिकॉर्डिंग फिर से करिए। पहली क्लास से वही बोलते आ रहा हूं मैं, और पहली क्लास अपलोडेड है यूट्यूब में। जो जिसके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि क्लास लेना जरूरी है एग्जाम पास होने के लिए, ऐसा थोड़ी ना ट्यूशन करना जरूरी है। फ्री वीडियोस है, आप उनको फॉलो करिए। मे भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कोई चीज समझने में, एक्स्ट्रा टाइम यू विल टेक, और मे बी इट विल दैट कि with the classes you are more structured, bounded, but without the class you will skip today, tomorrow and all that. The major importance of classes, less study. The something can be explained by the tutor fast, so you need to study less. Second, a control that you need to study, you cannot skip. अपने आप पढ़ने से ये दो चीज का ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, नॉट ACCA, एनी कोर्स इन द वर्ल्ड कैन बी डन सेल्फ स्टडी, बट दैट डिवोशन इज रिक्वायर्ड। यू नीड टू डू मोर रिसर्च, उतना ही है और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्लास जो है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि दोज हु आर टेकिंग द क्लासेस, बट जो क्लास लेकर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे, उससे तो यहां चोट लगती है ना यार। यू आर परफॉर्मिंग प्रोसीड्यूर्स ओवर द नॉन करंट एसेट्स बैलेंस फॉर योर क्लाइंट एल कंपनी। You are performing procedures over the non-current assets balance for your client L company. The balance consists of motor vehicles, fixture and fittings, and land and buildings. Motor vehicles are replaced on a 3-year cycle. Fixture and fittings are replaced as and when required. The company uses the following depreciation rates. मतलब नॉन करंट एसेट के बारे में सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर का क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल्स अपने पास, फिक्सचर फिटिंग्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है। मोटर व्हीकल्स आर रिप्लेस्ड ऑन अ 3-year cycle. Fixture and fittings are replaced as and when required. The company uses the following depreciation rates. Land and building, no depreciation is charged due to values increasing. Land and building, no depreciation charged due to values increasing. लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, लेकिन ये लैंड बिल्डिंग दोनों पे ही नहीं कर रहे हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग्स 10% स्ट्रेट लाइन। फॉर फिक्सचर एंड फिटिंग्स दे सेड दैट व्हेनेवर वी रिक्वायर वी नीड टू रिप्लेस, तो हम लोग 10 साल सोचने चलता होएगा 10%। मोटर व्हीकल्स 20% स्ट्रेट लाइन। मोटर व्हीकल्स में दे आर सेइंग दैट दे नीड टू रिप्लेस आफ्टर 3 years. Then why they are doing depreciation in 5-year basis? Not a correct policy. Which of the following best describes the audit risk resulting from the depreciation policy used for land and building? हमने अभी पढ़ा ऑडिट रिस्क क्या होता है। Because of that, material misstatement may be there in the financial statement. Assets, income, expenditure, liabilities are under or overstated. ये बात बोली। Which of the following best describes the audit risk resulting from the depreciation policy used for land and building? Not fixture fitting, land and building. Land and building may not exist. Land and building may not be completely recorded. Land and building may be understated. Land and building may be overstated. क्या लगता है, जो स्टोरी उन्होंने दी है तो लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इश्यू है? ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जिस्टेंस हाउ वी डू, एंड फॉर कंप्लीटनेस हाउ वी डू? फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, लेजर्स डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द डॉक्यूमेंट्स एंड देन द माने लेजर्स एंड देन द डॉक्यूमेंट्स, किसमें होता है? For existence and completeness testing. For completeness, we start from the basic level. We start from this and then see that it is there in the financials. And from existence, we start from the back. कि अगर ये बैलेंस शीट में है तो whether it was there earlier, it arises from some source documents. For overstatement, for understatement, what we test? ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट में कहां से चालू करते हैं? अब सोचिए कि somebody is not able to say, क्यों नहीं बोल पा रहे? पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग ही नहीं किए, पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया उसको पढ़ेंगे ही नहीं, और फिर बोलेंगे सर ऐसा है वैसा है। सर नहीं होएगा सर, कैसे हेल्प करें आपको सर? आज खाना है तो आज नहीं खाएंगे, कल डबल खा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। यू हैव टू बी सीरियस इन योर अप्रोच टू स्टडी। Test of assertions, completeness, accuracy and valuation, source document, register and then the financial statement.
कितना डिटेल में हम लोग डिस्कस किए, लेकिन उसको उस समय नहीं पढ़ेंगे, सारा बैकलॉग कर देंगे, बोलेंगे हमारा ऑफिस है। अरे भाई ऑफिस है तो रिकॉर्डिंग नहीं है क्या भाई? assertions of existence, rights and obligations, occurrence, accuracy, valuation, financial statement, then accounting records, then source. मैंने ये बोला था वैल्यूएशन दोनों में होता है, वैल्यूएशन दोनों में है, वैल्यूएशन दोनों में है, एक्यूरेसी दोनों में है। यहां पर अंडर स्टेटमेंट टेस्टिंग कंप्लीटनेस के लिए, अंडर स्टेटमेंट टेस्टिंग कंप्लीटनेस के लिए, यहां पर ओवर स्टेटमेंट टेस्टिंग एग्जिस्टेंस के लिए, राइट्स और ऑब्लिगेशंस केवल यहीं से होएगा, बिकॉज बैलेंस शीट में है तो वेदर यू हैव द राइट्स आर नॉट देयर। ऑकरेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन दोनों से होता है। थोड़ा तो मैकेनिकल बनना होएगा ना। इफ वी विल नॉट स्टडी इन द राइट डायरेक्शन, द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू कम इन अप्रैल, इट इज ऑलरेडी देयर नाउ एंड स्टिल टाइम इज देयर, स्टिल एम्पल टाइम इज देयर। अगर आप जोश में आ जाए कि भाई जो मैं बोला हूं आप उसको फॉलो करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं पास होते हैं, देखते हैं हर जन का 70 नहीं आता है क्या, 50 की तो बात ही क्या है। बट अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो लैंड बिल्डिंग एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन यहां नहीं है, कंप्लीटनेस का क्वेश्चन नहीं है, अंडर स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहे, ओवर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मे बी लैंड एंड बिल्डिंग आर ओवर स्टेटेड बिकॉज ऑडिट रिस्क इज व्हाट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एनी एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड। इस बात को लिख लिया जाए एक बार, ये बुक में लिखा हुआ है आंसर में, लेकिन कितना जोर से ध्यान दे रहे हैं। ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ balance sheet or not or and oblique or PL account. The way I am writing in the sheet, you need to write on your own understanding, write up so that आप ऑडिट रिस्क जब भी पढ़ें तो आपके दिमाग में चालू हो जाए, ओ दिस इज ऑडिट रिस्क, दिस आई नीड टू राइट, दिस आई नीड टू कवर। तो जब अब्दुल्ला ने अमाउंट लिखा 8 लाख 1,80,000, वो लिखना चाहिए। अब्दुल्ला ने लिखा कि वो ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट हो सकता है, वही ऑडिट रिस्क है, उसी को बोल रहे हैं ऑडिट रिस्क। अगर आप ये ध्यान कर लेंगे तो एक कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 10-20 मार्क्स का ऑडिट रिस्क आएगा। क्या गड़बड़ है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है, वॉट एवर द सिचुएशन दे हैव गिवन, बिकॉज यू नीड टू यूज द सिनेरियो विच दे हैव गिवन। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट FR, PM, FM है। ऑडिटिंग और टैक्सेशन सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, दे आर इजियर सब्जेक्ट। FR, FM, PM आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, बिकॉज अगर FR, FM, PM इतना अभी रहता कि सिलेबस खत्म करना है, थोड़ा मन में रहता है, टैक्स और ऑडिट में रहता ही नहीं है, बिकॉज ऐसे ही खत्म हो जाएगा सिलेबस, कोई टेंशन ही नहीं है whenever. But if you don't make your notes, don't understand the things properly, 50 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएंगे जितना करेंगे। Which of the following procedures provides the most reliable evidence to assess whether 10% straight line is an appropriate rate for fixture and fittings? Which of the following procedure provides the most reliable evidence to assess whether 10% SLM is an appropriate rate for fixture and fittings? हम लोग फिक्सर एंड फिटिंग्स को डेप्रिसिएट कर रहे हैं 10% से, जबकि उन्होंने बोला जब रिप्लेसमेंट जरूरत होता है तब करते हैं। तो वाई वी आर डूइंग 10% डेप्रिसिएशन? उसके लिए मोस्ट रिलायबल थिंग इज व्हाट? इंक्वायर ऑफ द क्लाइंट वेदर द रेट इज एप्रोप्रिएट एंड हाउ दे चूज दैट रेट। कॉन्टैक्ट द सप्लायर ऑफ फिक्सचर्स टू आस्क हाउ लॉन्ग द फिक्सचर्स वुड लास्ट। आप मेरे यहां ऑडिट करने आए हैं, मैं कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन 5 इयर्स में करता हूं, आप कंप्यूटर जिससे खरीदा उसको फोन लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रकाश सर आप ठीक कर रहे हैं। नॉट, this is not the auditor job. B point is bogus. Review disposal of fixture and fittings to identify how long the assets have been used by L company and whether any significant profit or loss on disposal arose. The question is relating to reliable evidence for 10% depreciation. The question is not relating to disposal of fixture and fittings and their profit loss. C number, language is correct but not related with the question. Compare the rate with the other audit clients of your firm. Compare the rate with the other audit clients of your firm. If you are going training industry में audit,
तो आप कभी कभी दूसरे कंपनी को देखते हैं, तो डी नंबर रॉन्ग नहीं है, लेकिन कौन सा बेटर होगा, वेदर ए और डी? आई विल गो विथ ए, बिकॉज मे बी माई competitor are doing depreciation in a particular way. I am in the same business, but I have logic why I am doing in a different way. Allowed. So inquire the client whether the rate is appropriate and how they choose that rate. That is more appropriate as compared to why your depreciation policy is different than your competitor. हो सकता है आपके पास लॉजिक हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज depreciation is already a judgment. It cannot be a law. It cannot be a rule. So ask the judgmental thing, what the board members, what the accounts controller have decided, why they are doing like this, what is the logic behind that, ask them only. Inquire of the client whether the rate is appropriate and how they choose that rate. Which of the following statement is true in respect of L Motors vehicles? The depreciation rate is unreasonable, as the company only uses the assets for 3 years. Thereafter depreciation should be charged over 3 years. और पढ़ने की जरूरत नहीं है, because motor vehicle they are charging 20% depreciation, whereas the life is 3 years. Why they will charge 20% depreciation? So और आंसर हो ही नहीं सकता. A 100% motor vehicle has a useful life longer than 5 years. कहाँ? तो not to be read. The depreciation rate is reasonable. No, it is not reasonable. The depreciation charge for motor vehicle is unlikely to be material. Therefore, the rate used does not matter. We can't say about materiality in this question. We have not been given sales, we have not been given PBT, we have not been given assets value. हम कैसे बोले? If they would have given, then I would be considering this. Because if it is immaterial, material नहीं है, तो audit risk वहां नहीं आता है. So D number, no information given in the question. C number wrong, B number wrong. Answer is A. Why we are charging illogical depreciation? The audit plan includes a procedure to trace a sample of assets included in the non-current asset register to the physical asset. The audit plan includes a procedure to trace a sample of assets included in the non-current asset register to the physical asset. Sorry again. The audit plan includes a procedure to trace a sample of assets included in the non-current asset register to the physical assets. From the balance sheet to the ledgers, then to the documents. From the documents to the ledgers to the balance sheet. Here, there. Which one is the case? अभी हमने पढ़ा फिर से. जब तक आप अपने आप पढ़ के 2 बार 4 बार, वापस मैं वहां नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट में है तो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं. बैकवर्ड, फॉरवर्ड, कंप्लीटनेस, हम कंपनी में देख रहे हैं, बैलेंस शीट में है कि नहीं. सो दिस इज एग्जिस्टेंस. दिस इज प्योर स्ट्रेट कट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीज्योर प्रोवाइड्स द मोस्ट रिलायबल एविडेंस व्हेन कंफर्मिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर अ नॉन करंट एसेट्स? कंपनी का एसेट्स है, ये कंप्यूटर मेरा है, कैसे पता चलेगा? दिस कंप्यूटर बिलोंग्स टू सराफ एकेडमी. हाउ यू विल कम टू नो? व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो दैट द कंप्यूटर बिलोंग्स टू सराफ एकेडमी? इनवॉइस, बिल सराफ एकेडमी के नाम में होना चाहिए. लैंड बिल्डिंग, द डीड शुड बी देयर इन द नेम ऑफ सराफ एकेडमी. फिजिकल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ फिक्चर एंड फिटिंग्स, इनवॉइस they are talking about. Inspection of valuation report, written representation for management confirming ownership. Management confirming ownership से बढ़िया है inspection of invoice. Physical inspection is for existence. Inspection of valuation report for land and building for valuation assertion. This is for inspection, this is for valuation. B and D both for the company rights and obligations, but better is B as compared to D. Most reliable evidence by third party confirmations, third party documents, outside documents are more important, more reliable than whatever management or anybody is saying. You are assigned to the audit team of C company performing testing over non-current assets. You are assigned to the audit team of C company performing testing over non-current assets. Again non-current. उसी से प्यार है इनको.
Which of the following is not an audit procedure from ISA 500 audit evidence? मेरे को नहीं याद है 500, लेकिन इंस्पेक्शन होता है, चेकिंग होता है, रिकैलकुलेट होता है, सॉरी चेकिंग नहीं होता है, इंक्वायरी होता है, चेकिंग कुछ, चेकिंग इज अ जनरल वर्ड, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेट, वो सब काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बट चेकिंग तो सबके लिए, चेकिंग ऑफ इंस्पेक्शन, चेकिंग ऑफ इंक्वायरी, चेकिंग ऑफ रिकैलकुलेट, चेकिंग इज अ वर्ड which is common word, common English word. Which of the following audit procedure would confirm the existence of property, plant and equipment? Existence, recalculate the depreciation charge, that is valuation. Physical inspect a sample of assets listed on the non-current. Can we say this one? Existence, backward, Eileen has written कि बैलेंस शीट में है, डॉक्यूमेंट्स है, ऑल है, बैकवर्ड. रिकंसाइल दिस शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जनरल लेजर, नो. दैट इज फॉर व्हाट पर्पस? कंप्लीटनेस. शेड्यूल से पीएल बैलेंस शीट में जा रहे हैं. रिव्यू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगेन इट्स अ कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस. This you can say valuation. This also can be said as valuation. But physical inspection is called existence. Which of the following is not a financial statement assertions relevant to your testing of non-current asset? Which of the following is not a financial statement assertion relevant to your testing of non-current assets? Which of the following is not a financial statement assertion relevant to your testing of non-current assets? Not a financial statement assertions. Occurrence is relevant for PL account. Sale, purchase, salary, wages, PL account. Completeness, rightness, rights and obligation, existence each for balance sheet. Actually completeness each for balance sheet, rights and obligations for balance sheet. Existence हम लोग उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, but normally balance sheet. Which of the following issues would result in misstatement in the non-current assets balance? Which of the following issues would result in a misstatement in the non-current assets balance? Which of the following issues would result in a misstatement in the non-current asset balance? Misstatement in the non-current asset. An error in recording the cost of sales, cost of asset. A misclassification between fixture, fittings and motor vehicles. The depreciation charge has been correctly credited to accumulated depreciation but debited to irrecoverable debt expense. A purchase invoice not being recorded in the asset register. The question is asking misstatement of asset value in the balance sheet. So when the cost of the asset is not properly recorded, misstatement possible. When the fixture fitting is recorded, motor vehicle recorded fixture fitting, assets ka value, because in balance sheet we don't record separately land, building, plant, machinery, furniture, fixture, total. In notes to accounts we write. So misclassification in the balance sheet will not be there. A problem for value of assets in the balance sheet. Depreciation charge, you have recorded in accumulated, but in PL account you have recorded as bad debt expense. PL में खर्चा आपने जो भी लिखा हो, बैलेंस शीट में तो accumulated लिखा है, तो बैलेंस शीट में तो एसेट्स फिगर करेक्ट है. दैट इज मिस स्टेटमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नॉट देयर. परचेज इनवॉइस फॉर एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड. आपने एसेट खरीदा, उसको बुक्स में लिखा ही नहीं, तो उससे एसेट वैल्यू रॉन्ग. सो 1 number and 4 number will create a problem for the assets value. Miss statement relating to assets value, 1 number, 4 number. 2 number, 3 number are wrong, but they are not for the reason that the assets value in the balance sheet will be wrong. When testing the assertion of rights and obligations over land and buildings, which of the following would provide the most reliable evidence? When testing the assertion of rights and obligations over land and buildings, which of the following would provide the most reliable evidence? Earlier they asked about furniture. Now they are saying rights and obligations about land, building. बात वही है. Inspection of insurance policy, physical inspection, inspection of title deeds. That's all. C is the answer. Inspection of non-current. If it is furniture, fixture, invoice वगैरह. If it is intangible assets, then title deeds. Inspection of insurance policy. For what type of purpose? For accuracy, for what I should say, valuation, for existence,
फॉर कंप्लीटनेस, क्या चीज के लिए? इंस्पेक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर व्हाट पर्पस? जस्ट आई एम आस्किंग, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग. Physical inspection of land and building for what purpose? Inspection of non-current asset register for what purpose? Anybody? Here the answer is C. But what is the purpose for A, B and C? A, B and D. Which assertions? Which one? Existence किसके लिए? I will say that inspection of non-current asset register existence and completeness both. Because if you go backward then also middle, if you go forward then also middle, दोनों के लिए ना. आप अगर बैलेंस शीट से जाओगे, रजिस्टर में जाओगे, लेजर में जाओगे, फिर एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओगे. आप फिजिकल वेरिफिकेशन से एसेट रजिस्टर वगैरह में जाओगे, फिर बैलेंस शीट में जाओगे. बात तो एक ही है. सो द लास्ट वन इज फॉर बोथ पर्पस बिकॉज इट इज द मिडिल एक्टिविटी. मिडिल फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. Again I will say both purpose because starting तो कहां से बोल नहीं रहे. Physical inspection, if you start then completeness. If you are going from back then it is existence. So B and D are for both purpose. Adrija and Ayush, are you getting? And others also. Point number B and D, they are not saying you the process. They are saying you कब. दोनों केस में होता है. Whether we are testing existence, whether we are testing completeness. Inspection of the insurance policy. क्या चीज के लिए बोले इसको? Can we say valuation? Why valuation but? Why valuation assertion is relevant for inspection of insurance policy? सर अगर कोई डैमेज हुआ तो उस चक्कर में माने हम लोग जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट्स. तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से वैल्यूएशन के बारे में फीलिंग आएगी. आज मान लीजिए मेरा ये प्रॉपर्टी है 200-250 स्क्वायर फीट और अगर कोई प्रॉपर्टी है 5000 स्क्वायर फीट. सो इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसी हिसाब से होएगा ना. सो इंश्योरेंस पॉलिसी विल गिव यू फीलिंग रिलेटिंग टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आल्सो बिकॉज इंश्योरेंस विल बी गिविंग यू इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन यू हैव द राइट्स, व्हेन यू आर द ओनर. एंड सेकंड, इट विल बी हेल्पिंग यू इन द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स आल्सो. What I mean to say that my objective was today to cover other areas also, but मैंने cover नहीं किया. लेकिन आपका इलॉजिकल क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, कभी किसी का भी आ सकता है, 1000 बार पूछिए, बट वो तभी आएगा जब आप पहली क्लास से ठीक से नहीं पढ़ रहे. So if somebody has not studied properly from first class, Lalit, Abu Bakar, he has left. They have to start from first class properly. Time है, अभी से टाइम है. इफ यू आर वर्किंग देन ऑल्सो आई विल से दैट एज फार एज अदर्स आर कंसर्न, एक्सक्लूडिंग सम ऑफ देम हैज नॉट डन द क्वेश्चंस ऑन प्रैक्टिस किट वगैरह. लेकिन सम ऑफ देम हैज स्टडीड बट फिर भी नॉलेज थोड़ा खराब है, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है. और कुछ लोग है जो बहुत बढ़िया है, केवल एग्जाम किट करना बाकी है, उसको करते जाइए. बट टेंशन मत लीजिए एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होने का. वी आर वेरी वेरी गुड ऑन टारगेट. But you need to study regularly and follow the proper process. केवल क्वेश्चन राइट है रॉन्ग मत सोचिए. And now start doing some of the question with a time frame. कि suppose अब्दुल्ला has written the answers, उसने दिया, लेकिन अगर वो टाइम को चेक करेगा कि आंसर ऑडिट रिस्क और रिस्पॉन्स लिखने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको दिखेगा कि मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा. तो आप कुछ क्वेश्चंस को टाइम बाउंड भी करिए. 30 मार्क्स क्वेश्चन 54 मिनट्स, 55 मिनट्स. 20 मार्क्स क्वेश्चन 20 into 1.8, 35 मिनट्स. आप कितना पढ़ के लिख पा रहे हैं, बिकॉज दोनों चीज को मैनेज करना है ना. एंड वेयर एवर डाउट्स आर देयर, आई एम ऑलवेज देयर इज नो इश्यू. इफ यू वांट टू चेक एनी आंसर, सेंड इन द मेल. आई विल बी गोइंग 360 डिग्री, नॉट इन द व्हाट्सएप. बट इफ ऑडिटिंग के बदले कोई दूसरा सब्जेक्ट, तब आप व्हाट्सएप ही करिए, बिकॉज फिर कैसे डिस्कस करेंगे. बट आप क्लासेस अगर ठीक से अच्छे से करेंगे, लाइव करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. कोई भी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे ही आएंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द कंप्लीशन एंड रिव्यू. आफ्टर दैट क्लास वी विल बी डूइंग रिपोर्टिंग. मे बी वन मोर क्लास आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा, somebody asking doubts, this that. We are standing on 1st February. Within 15 days 2-4 क्लास.
you can say by 16th of February everything is finished and we will start doing mock papers after 16th. तो आपको मेरे साथ 16 तक आ जाना है, मेरे साथ बराबर. अगर बैकलॉग था ज्यादा पढ़ के कोई ऑप्शन नहीं है, बट प्रॉपर स्टडी करके, गलत तरह से स्टडी नहीं करके. देयर विल नॉट बी एन इश्यू इन पासिंग द एग्जाम. इट्स वन ऑफ द सिंपल सब्जेक्ट इन ACCA टू पास द एग्जाम्स ऑडिटिंग. थोड़ा सा भी अगर कॉन्शियसनेस रखेंगे, यू कैन इजिली पास द एग्जाम, यू कैन इजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ओके, एंड इवन दो यू आर नॉट गिविंग एग्जाम, स्टडी दैट यू आर गिविंग एग्जाम इन मार्च. तभी जून में एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं दे पाएंगे जून में एग्जाम. ओके, सो लीविंग फॉर टुडे. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. मे बी मैं बहुत बार बार बोलता हूं, लेकिन क्या करूं यार, what I should do, because I think that there is some still problems. So in place of saying individually to each, I should be saying in my classes everything which I feel for myself, I say for all of you, because you have given responsibility of yours to me. So I have a bigger responsibility to make you successful. For that reason, sometimes maybe I am harsh, but I have to. Okay? Yes, thank you.